Namaskar. This is Alok. I'm 24 into 7 serving for Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities and for the founder of the Manovikas family, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to Mashwara 46.11 episode of Good Practices. Mashwara is a live consultation during COVID-19 outbreak, seek to improve quality care, inclusive education and advocacy for persons with intellectual and developmental disabilities. मशवरा कोविड-19 के दौरान एक लाइव परामर्श है जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों की देखभाल, समावेशी शिक्षा और मूलभूत अधिकारों के लिए हिमायत या वकालत के बारे में बातचीत करता है. Today we are talking about the good practices of mothers' efforts. I welcome all our guests and audience. Today our series is on good practices of mothers' effort. माता के सर्वोत्तम प्रयास क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे. बातचीत करने से पहले I would like to say something. In fact, when something gets pricked in your body or some problem reaches somewhere, our mind start feeling this pain. We call this sensation or experience which may be pleasant or sad. The sensation that happened in the body, it happened in the mind right along with. And when it comes into the existence of mind, then we say that is or that was experienced I felt. वस्तुतः जब हमारे शरीर में कुछ चुभ जाए या कोई तकलीफ कोई पहुंचाए तो हमारा मन इसी पीड़ा को महसूस करने लगता है. इसे ही हम अनुभूति या अनुभव कहते हैं, जो सुखद और दुखद दोनों ही हो सकता है. अनुभूति जो शरीर में हुआ ठीक उसी समय हमारे मन में भी हुआ होता है, और जब यह मन के अस्तित्व में आ जाता है तब हम कहते हैं कि हमें अनुभव या अनुभूति हुई. Today's Mashwara episode will make us feel the sensation and experience of mothers of a special need child. आज के मशवरा के इस एपिसोड में हम एक विशेष बच्चे की मां की संवेदना और अनुभूति या अनुभव को महसूस करेंगे. This sensation is not just emotionally. Being emotional is the object of the enclosure to your heart, while sensation is proved by the combination of heart and intellect. जब हम संवेदना, यह संवेदना सिर्फ भावुकता नहीं है, हमारा इमोशनलिटी नहीं है. भावुकता तो हृदय के परिप्रेक्ष्य में एक वस्तु है, जबकि संवेदना हृदय और बुद्धि दोनों के सुमेल से सिद्ध होता है. I hope that all the great audience of Mashwara will also like this issue. Arouse some sensation within all of you and please join together to see how Benji has become a high-level singer and Avinav is making us all proud by becoming the famous dancer in country. So आशा करता हूं कि मशवरा के सभी महान भागीदारों को यह अंक बहुत ही पसंद आएगा और आपके भीतर की जो है ये संवेदना, मैं सोचता हूं कि उससे जगे और देखें कि आज बेंजी एक उच्च स्तर की गायिका कैसे बनी है और अभिनव एक फेमस डांसर बनकर हम सभी को कैसे गर्वान्वित कर रहा है. हम हमारे सभी दर्शकों का मशवरा में स्वागत करते हैं. खैर मकदम, आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल. हमारी बेस्ट ये गुड प्रैक्टिस सीरीज में आज हम माता के उत्तम प्रयास पर चर्चा करने जा रहे हैं. This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, and professionals during this coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान जूम पर, फेसबुक लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके देखभाल करने के लिए, पेशेवरों के लिए लाइव है. मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है. कृपया हम मशवरा में एक साथ जुड़े रहें. आई वंस अगेन वेलकम एंड अप्रिशिएट आवर स्पेशल गेस्ट टू ज्वाइन this episode, and this episode is bringing you a very important topic, and I am very pleased here to welcome our speakers today. And I'll introduce
my first speaker, our first speaker, Madam Kavita Kumar ji. Welcome you, ma'am. आपका स्वागत है. Kavita ji is a mother of Benji, and she is Benji is a 25 years old girl with autism. Today, Kavita ji's daughter Benji is a famous singer, and in spite of Benji's inability in communication, she has released 10 audio CDs, which has been recognized by musical legends such as Lata Mangeshkar ji, Asha Bhosle ji. She has also won 3 national awards and holds 2 Limca Book of Award for her credits, for her talents. So कविता जी एक 25 वर्षीय ऑटिस्टिक लड़की बेंजी की माँ है. आज उनकी बेटी एक प्रसिद्ध गायिका है और असमर्थता के बावजूद, मैं तो असमर्थता नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी कहें उसके बावजूद भी, जो भी लिमिटेशंस है उसके बावजूद भी बेंजी ने 10 ऑडियो सीरीज जारी की है, जिन्हें लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी जैसे संगीत दिग्गजों द्वारा मान्यता दी गई है. बेंजी ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं और अपनी प्रतिभा के लिए 2 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड अवार्ड्स, लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स भी मिला हुआ है. We welcome you, Kavita ji. Thank you for coming here, and it is always our pleasure. And जो दूसरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही close friend to मनोविकास, we can say, Madam नीरजा चौधरी जी. We welcome you, ma'am. And Neerja ji is a mother of Abhinav. We welcome Abhinav and Neerja ji, both of you. So thank you for coming here. So Abhinav is a mother. Abhinav, he is a 21 years old Down syndrome boy with all her hard work. Neerja ji's hard work. Today, Abhinav is a famous dancer and has done more than 200 shows. Credit. Abhinav has won the UP State Award 2019 for the Creative Disabled Personality in the field of dance and cultural activities by Uttar Pradesh government. And Abhinav is engaged in providing dance therapy classes to many Down syndrome and autistic child. So welcome you, Abhinav and Neerja ji. Neerja ji 21 वर्षीय अभिनव की माँ है. अभिनव को डाउन सिंड्रोम है. नीरजा जी की मेहनत के साथ आज अभिनव एक प्रसिद्ध नर्तक है और 200 से अधिक शो कर चुका है. अभिनव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य के लिए यूपी सरकार ने 2019 में स्टेट लेवल के पुरस्कार से अभिनव को नवाजा है. अभिनव अभी कई डाउन सिंड्रोम और ऑटिस्टिक बच्चों को डांस थेरेपी का भी क्लास प्रदान करता है. आई वेलकम बोथ माय I can say 3 legends are here. Kavita ji, Abhinav, and Abhinav ki mom Neerja ji. All three of you, I welcome very close to my heart. And I'll say we have our president here, Dr. Nimesh ji Desai sir. Maybe he join within some time. अभी तो दिखा नहीं है, कैमरे में है, बट और मैं I also welcome our mentored Mr. J.C. Gupta sir. So thank you very much sir for coming here. And we have sign language interpretation by Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. मैं पुनः स्वागत करता हूं हमारे विशेष वक्ताओं का, मैडम कविता कुमार जी और नीरजा चौधरी जी. सो वेलकम यू. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विथ कविता जी. मैं आपके पास ही जाऊंगा. मैं देसाई सर आएंगे तो देन आई विल टेक हिज वर्ड्स आल्सो. आई थिंक नो yet his camera has not on. Okay, so कविता जी, मैं तो ऐसे आपसे कई बार मिल चुका हूं और आपके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है. जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आप कितने आगे तक और कहां तक पहुंची हुई हैं वो तो दुनिया जानती है. लेकिन हम देखते हैं कि एक माँ की जो संवेदना या अनुभव है उसको महसूस करने के लिए और उस समय महसूस करने के लिए कि जब आपको लगता है कि बेंजी इतनी सफलता तक पहुंच चुकी है, इतना आगे तक पहुंच चुकी है, तो ये जो आपकी जो अनुभव है, ये जो आपकी संवेदना है, उसको आप कैसे फील करते हैं? आपको लगता होगा कि आप एक सेलिब्रिटी की मदर है, अगर मैं रहूंगा तो मैं तो बहुत आगे बहुत सारा चीज अनुभव करूंगा. मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं. वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू हाउ यू हैव फेल्ट योर सक्सेस विद बेंजी in order to feel the sensation and experience of mother. So Kavita ji, आपका वेलकम है.
या सबसे पहले तो मशवरा के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मौका दिया। आलोक जी को धन्यवाद जिन्होंने आज मौका दिया आप सबके समक्ष हमें आने का। और जैसे उन्होंने कहा कि बेंजी एक सक्सेसफुल सिंगर है और काफ़ी नाम हो चुका है उसका, तो सच में ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने अपने पूरे इंटायर लाइफ में जब बेंजी पैदा हुई थी तो हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम तक पहुंचे, और हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा क्योंकि जब ये पैदा हुई थी और जो स्थिति उस समय थी और जो आज है वो बिल्कुल पलट है, उलट है। मतलब लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वही वो बच्चा है जो बचपन में जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल कह दिया था कि ये लड़की जो है डेड चाइल्ड है और ये बहुत लाइफ लॉन्ग बेड पे रहेगी और बहुत हुआ तो व्हील चेयर पे इसको पूरा जिंदगी गुजारना पड़ेगा। और लेकिन और हाँ, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये लोग कहने लगते थे कि लड़की है और इतने प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई है तो इनका भविष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की थी और हम लोग स्पोर्ट्स में एक पॉइंट्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते, लास्ट तक उसको कंटिन्यू करते। तो शायद मेरा यही एटीट्यूड काम कर गया और मैंने बेंजी के साथ काम करना शुरू किया। और बेंजी जो है अब तक पूरे वर्ल्ड में 1000 से ज़्यादा, इंडिया और विदेशों में भी जाकर 1000 से ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है म्यूजिक के लिए। तो जब बेंजी बहुत छोटी थी, थैंक यू, तो बेंजी जब बहुत छोटी थी तो उसने किसी चीज़ से भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी वो, लेकिन एक चीज़ म्यूजिकल टॉय से उसने इंटरेक्ट किया था। तो मैंने उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ को, पूरे दिन के एक्टिविटीज में म्यूजिक जोड़ दिया। और उसके बाद से मैंने म्यूजिक पे रिसर्च करना शुरू किया। जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल रागा में हीलिंग पावर होता है, तो मैंने उस रागास को, डिफरेंट डिफरेंट रागास को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसको सुनाकर उसके नर्व्स को हील किया। और उसके बाद हमने जो इंडियन महामंत्र मंत्रास हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र, उन सबको भी उसको यूज किया उसके ऊपर। जैसे वो जिस दिन वो जब सो के उठती थी, जिस दिन हम उसको मंत्रों के साथ या रागों के साथ उठाते थे, उस दिन वो बहुत खुश रहती थी और काफी दिन, सारा दिन वो अच्छे से गुजार लेती थी। लेकिन जिस दिन हम बिना मंत्र या रागा के गाए बिना उठाते थे, उस दिन वो बहुत ही हाइपर रहती थी और सारा दिन अपसेट रहती थी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, दिन प्रतिदिन, बहुत लंबी जर्नी है ये, 25 साल की हमारी जर्नी है। और ये कोई एक दिन में हमें कुछ नहीं मिला, जो भी इम्प्रूवमेंट है वो कोई एक दिन में नहीं मिला, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हर दिन एक नया चैलेंज हमारे सामने आया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे धीरे 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 म्यूजिक को उसके पूरे लाइफ के साथ मर्ज कर दिया। और बेंजी को सोते उठते, जैसे हम सभी इंसान के अंदर कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड जो आदमी सोता रहता है, तो मैं सोते वक्त भी उसको कोई ना कोई राग या कोई ना कोई मंत्र उसके बगल में चला के रखती थी। और अनकॉन्शियस माइंड में ये हो गया, और कॉन्शियस माइंड में जैसे वो जगी है तो रेडियो से, टीवी से, या कार में जा रहे हैं तो कार में गाना सुनाती थी। मतलब मेरा एक जो विश्वास ये था कि उसके दिमाग में म्यूजिकल नोट्स जाने चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर जैसे होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम 100% श्योर होते हैं कि जो हम फीड कर रहे हैं उसका पूरा आउटपुट आएगा, प्रिंट आउट पूरा आएगा। लेकिन हमारे बच्चे में हम श्योर नहीं होते, इसलिए हम उनको इनपुट करते जाते हैं, कितना आउटपुट होगा ये हमें धीरे धीरे करके पता लगता है। लेकिन बेंजी ने धीरे धीरे रिस्पॉन्ड किया। 7 साल की उम्र में उसने अपना पहला स्टेज शोज किया था, राग यमन के लिए गाया था। उस समय उसको कुछ नहीं पता था, जैसे स्टेज के तौर तरीके। तो धीरे धीरे मैंने एक चीज किया कि इसको कभी किसी से छुपाया नहीं, जो है एज इट इज मैंने लोगों के सामने रखा। और ऑन द स्पॉट, जैसे मैं इसको कहीं भी लेके जाती थी, स्टेज हो गया या किसी भी पार्टी में गए, किसी के घर गए, ऑन द स्पॉट मैं उसको ट्रेन करती थी। क्योंकि आप इन बच्चों को घर से कितना भी सिखा के ले जाओ, ये नहीं कर सकते। वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या रिएक्शन करेंगे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने ये एक तरीका निकाला कि जो इसने एक्टिविटीज किया, अगर वो ठीक है
तो कोई बात नहीं, अप्रिशिएट किया, और अगर ठीक नहीं है तो ऑन द स्पॉट उसको सिखाना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो हमने जितना भी स्ट्रगल किया, जो भी किया, वो आप सबके सामने है, और बेंजी आप लोग के सामने है। आज पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। अभी लंदन में वो परफॉर्म करके आई, वहाँ पे उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और इंडिया के नाम को उसने रोशन किया। उसने सिंगापुर में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसके टैलेंट को। क्योंकि जो बच्ची कम्युनिकेट नहीं करती, बातें नहीं करती, लेकिन म्यूजिक का सेंस उसको एमए लेवल का है, क्योंकि और सब फील्ड में वो जीरो है, लेकिन म्यूजिक में उसने एमए कर लिया है एक तरह से। मैं तो आपके यही पास एक जर्नी है। मैं देखिए जो मैंने आज सवाल किया था आपसे, उस सवाल को जी मैं थोड़ा सा और विस्तार करना चाहूंगा। हमारे पास जेसी गुप्ता सर हैं, अगर कोई करेक्शन होगी तो सर आपसे मैं चाहूंगा। जो हमारा अभी 22-24 साल जो तजुर्बा है, जो हमारे अपने स्पेशल नीड लोगों के साथ काम करने का और उनके पेरेंट्स के साथ काम करने का, तो उसमें मैं देखता हूं कि 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रिग्रेशन में ही अपना जिंदगी गुजार देते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ ये बच्चा हो गया, मेरी जिंदगी अब खराब हो गई। जो एक ये फीलिंग है। दूसरी फीलिंग है कि सेलिब्रेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ऑफ सक्सेस, जो बेंजी की मॉम ने की, कि वो उन्होंने छोटे छोटे बचपन से लेकर अब तक बेंजी के हर छोटे से लेकर लंदन तक के सक्सेस को, स्टैंडिंग ओवेशंस को भी सेलिब्रेट कर रही है। तो जब वो सेलिब्रेशन आपको लगता है मैडम कि बेंजी को इतना सारा स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, इतना सारा चीज मिल रहा है, तो आप उस समय आपके मन में क्या होता है? आपके मन में क्या रिग्रेशन रहता है? क्या वो कभी ऐसी भावनाएं कभी आती है उस समय? मेरे को बस एक चीज, जब सब लोग अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो मेरे दिमाग में बस वही एक दिन की बात आती है, 20 साल पुरानी, कि कैसे लोगों ने मेरे को ये कहना शुरू कर दिया था, सबने हमारे से रिश्ता तोड़ लिया था कि अब तो इनके लाइफ में कुछ नहीं है, ये बच्चे का क्या होगा। और लोग गलत दृष्टि से देखते थे कि इनके घर में ऐसा बच्चा हो गया तो अब इनसे रिश्ते नाते रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी मिले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी लोग निगेटिव थॉट्स लेके आए थे और निगेटिव बोलते थे कि कुछ नहीं हो सकता इन बच्चों का। आज जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग देखते हैं, और वही लोग जिन्होंने मेरे को एक तरह से कहते हैं कि मॉरली बहुत डाउन कर दिया था, आज वही लोग जुड़े हैं हमारे साथ और अप्रिशिएट करते हैं बेंजी को, और बोलते हैं कि बेंजी मेरी ये है, बेंजी से अपना रिलेशन दिखाते हैं, शो करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि एक बच्चे को जिसको बहुत सारे लोगों ने, सबने नहीं, बहुत सारे लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था, आज वो उन बच्चों को, उस बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सक्सेस है कि जहाँ सब तरफ से रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब वो रास्ते खुलने लगे हैं, लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को, सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा और उतना जल्दी आप उसके साथ काम करना शुरू करेंगे। आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में एक स्पेशल बच्चा है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट करेंगे, ना कि उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपेंगे, क्योंकि उनके लिमिटेशंस होते हैं। वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकते, आपकी मर्जी के हिसाब से वो काम नहीं कर सकते। अगर हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो जिस भी फील्ड में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो म्यूजिक हो। जैसे अभिनव है, उसने डांस में अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी मम्मी ने उसको प्रमोट किया। तो हम लोग का काम है कि बच्चा अगर किसी भी फील्ड में कुछ भी इंटरेस्ट दिखा रहा हो तो हम उसको नर्चर करें और उसको आगे बढ़ा के लेके जाएं। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही, मैं तो हर बार आपसे इंस्पायर होता हूँ, सो थैंक यू। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बात कही, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो मंत्राज है, वेदास से निकले हुए मंत्राज हैं, जैसे गायत्री मंत्राज हैं, वो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है। मैं जस्ट एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि मनोविकास में वी हैव मेड द डांस एंड म्यूजिक, वैदिक डांस एंड म्यूजिक थेरेपी, और
वो पूरा मैंने रिसर्च जब यूनेस्को को सपोर्ट किया, शेयर किया, तो वो लोग बड़े ही खुश हुए और हम लोगों को उन्होंने बुलाया अपने जनरल असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत ही असरदार है और हम देश में भी मानते हैं और विदेशों में भी इसकी बहुत वैल्यूज है। तो हम अपने बच्चे पे कर सकते हैं जो आपने म्यूजिक और डांस के बारे में बात किया। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपके कोई भी सवाल या सुझाव है, वी आर वेलकम इट। आपका सभी सवाल और सुझाव आपका उसका स्वागत करते हैं। हम फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप तक पहुंच रहे हैं, आपका वहां भी आप सवाल दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप सवाल हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ आई विल गो टू नीरजा जी। पुनः आपका स्वागत है नीरजा जी। और अभिनव, जब आपने अभिनव के बारे में सुना कि उसको डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उस समय आपके मन में क्या अनुभूति हुई थी, क्या आपको फीलिंग आई थी? सो व्हाट डिड यू फील when you have heard about the अनुभव as a special child कि कुछ उसमें खूबी है? सबसे पहले तो नमस्ते सर। नमस्ते। धन्यवाद मनोविकास फैमिली, मशवरा और आलोक सर कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब पता चलता है, एकदम से कुछ अचानक पता चलता है, तब दुख तो होता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर अब रोने धोने से तो कुछ हो नहीं सकता कि पता चला और हम लोग ऐसे हो गए। तो मन में एक ही आया कि स्पेशल है तो शायद हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। बच्चा स्पेशल है तो पेरेंट्स भी स्पेशल बनने चाहिए। तो स्पेशल कुछ अच्छा स्पेशल हो सकता है। तो वो एक नेगेटिविटी छोड़ के हम लोगों ने नकारात्मक सोच छोड़ी और कुछ अच्छा सोच के हम लोगों ने ये तय किया कि हम कुछ करेंगे। तब तक हमको ये नहीं पता था कि अभिनव क्या करेगा, लेकिन स्पेशल है तो उसको स्पेशल बनाएंगे, ये जरूर दिमाग में आया। गुड। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप को अपने आप में भी स्पेशलिटी सोचना, स्पेशल सोचना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जर्नी रही आपकी, जब आप अभिनव के साथ आप अपने लाइफ को जोड़ा और अपना चलना स्टार्ट किया, तो उस समय तो जैसे कविता जी को भी बहुत सारे लोगों ने कहा, आपको भी कहा होगा बहुत सारे लोगों ने कि अब ये डाउन सिंड्रोम है, ये पता नहीं क्या है, कैसे है, बहुत सारी बातें। और मैं कहता हूं कि अभी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, आपकी जर्नी और आगे जाने वाली है, ये सुनने के लिए कि जैसे जैसे हमारे समाज में अवेयरनेस होता है, तो वैसे वैसे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये इससे ये प्रॉब्लम होगा, इससे जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, इससे कुछ प्रॉब्लम होगा। तो सबका निदान है, सबका बहुत ही सॉल्यूशन है। लेकिन जो ये लोग जब कहते थे तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे, क्या कहते थे उन लोगों को? देखिए, अभी जैसे जो कविता जी ने बताया वो बिल्कुल सच है कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि हमें ये बच्चा स्पेशल है या ये क्या कर पाएगा, अब तो इनकी लाइफ ही खत्म हो गई। कई बार लगता है हमको भी कि शायद ये सभी लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जो अभी कविता जी ने बताया कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वही लोग हमको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ठीक है, इन्होंने ऐसा किया है, तो जो हम लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि ये नहीं कर पाएगा कुछ ऐसा, तो वही एक मन में कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि ऐसा बोला तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। बाकी तो ऊपर वाला है करने वाला, बट हम अपने एफर्ट्स तो उसमें डाल सकते हैं। हम बहुत ही तो वही हमें अपनी कर्तव्य, हमें क्या करना है, हमें उसकी कुछ क्वालिटी दिखी और हमें लगा कि हाँ हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो वही है कि हमें अब इसको ऐसे तो नहीं करेंगे, हो सकता है लोग चैलेंजेस जो दे रहे हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना था और हमें वही लोगों ने शायद हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है, अभिनव को यहाँ तक पहुंचाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि अगर माँ बाप सोच ले कि अगर समाज कुछ भी कह दे, उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना है कि ठीक है, अगर ये कमी बोल रहा है तो लेट अस स्टार्ट टू रिवाइव दैट कमी। हम उस कमी को सुधारने की प्रक्रिया स्टार्ट करें, उसमें कुछ नया ढूंढने की प्रक्रिया स्टार्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि हम ये सोचते रह जाएं कि अच्छा इसमें कमी है। तो अगर हमें कोई भी कमी बताता है कभी भी, और लाइफ में एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने एक सपना देख लिया है या जो हमने एक एक्सपीरियंस किया है या जो लोगों से सुना है कि यही चीज नॉर्मल होता है, तो लोग सभी उसी के पीछे चले जाते हैं कि नॉर्मल होना मीन्स नॉर्मल शकल सूरत होना। ऐसी बात नहीं है। मैंने आई हैव सीन इन माय लाइफ, मेरा पहला रिसर्च ही डाउन सिंड्रोम बच्चे पे था और उसके बाद मैंने देखा है कि
यूएसए में एक, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, वो डाउन सिंड्रोम ऑथर है और बहुत ही नंबर 1 उनकी किताब है, जो मेडिकल साइंस में वो किताब लिखते हैं, और मेडिकल साइंस की किताब लोग उनके साथ उनकी मेडिकल साइंस की किताब पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत आगे तक बढ़े हुए हैं, और अभिनव भी कम नहीं है, अभिनव भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ये चीज अगर हम सोचें, और उस जो इनपुट और आउटपुट की बात कही गई थी कि हमें क्या इनपुट मिल रहा है, तो इनपुट में जो भी मिला, नेगेटिव मिला या कम मिला, लेकिन आउटपुट में जो आज अभिनव है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सो आई विल गो टू, वी हैव एक कुछ क्वेश्चन है। वैदिक इंटरनेशनल थेरेपी एंड रिसर्च हैज आल्सो स्टार्टेड द कोलैबोरेशन विद जिपमर पॉन्डिचेरी। कुछ लोगों ने लिखा है कि वैदिक डांस में ऑलरेडी कुछ काम हो रहे हैं। बहुत स्नेहलता मैडम ने लिखा है कि बहुत ही एडमायरल है। सुनील कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सुनील कुमार जी। ओके, नाउ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मनोविकास इज वर्चुअली ओपन थ्रू मनोविकास ई ज्ञानशाला, देन मशवरा और मन भावन, जो वीक में 2 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है। हम लोग प्लान कर रहे हैं एक दिन बेंजी का और एक दिन अभिनव का मन भावन में प्रोग्राम रखने के लिए। सो लोग देखेंगे, जितने भी हमारे और भी स्पेशल नीड वाले लोग हैं वो भी देखेंगे कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। हम लोग वो प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली विल कम वेरी सुन। जो हमारे ऑडियंस हैं, मैं उनको सभी को बताना चाहता हूं कि मन भावन और मशवरा की जो पॉपुलैरिटी है, इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग करीब 2 लाख पार्टिसिपेंट्स के लाइक्स और व्यूज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो हमारा आने वाला 50th एपिसोड ऑफ मशवरा है 14 अक्टूबर को, वो हमारा गोल्डन जुबली एपिसोड होगा। तो आप लोग जरूर अपने डेट को ब्लॉक्स कीजिए 14 अगस्त को। मैं जाना चाहूंगा कविता कुमार जी को के पास कि व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू डिसाइडेड दैट द बेंजी वुड स्टार्ट सिंगिंग एज ए कैरियर। मैं तो देखता हूं कि बेंजी का ये कैरियर है कि एक उसका भविष्य है उसमें। कि आपका पहला अनुभव क्या हुआ था जब आपने ये फैसला किया था कि बेंजी को अब गायिका ही बनाना है, गायिका के ही कैरियर को चुनना है? तो वो कैसे आपने वो अनुभव को थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। या जी, जब बेंजी ने म्यूजिक से इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं मदर हूँ, मैं सिखा रही हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई थर्ड पर्सन भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो मैंने 1-2 गुरु को कांटेक्ट किया और कहा कि आप आइए और बेसिक राग जो शुरुआती दौर के राग होते हैं उनको बेंजी को सिखाइए। तो 2-3 गुरु आए और 2-3 गुरु ने कहा कि मैडम, उन्होंने लिटरली ये वर्ड यूज किया कि मैडम आप पागल हो गए हो, जो बच्ची जो है मेरे सामने बैठती नहीं है और मेरी तरफ देखती नहीं है और सारे कमरे में चक्कर लगाती रहती है, उसको आपने सोच भी लिया कैसे कि ये गाना सीखेगी या गाएगी? तो आप लोग जो पेरेंट्स हो, ये ख्याल निकाल दो अपने दिल से, इस बच्ची का कुछ नहीं होगा और ये जिंदगी में नहीं सीख सकती। जो ये कर रही है जिस हिसाब से इसकी जो एक्टिविटीज है, ये नहीं सीख सकती है म्यूजिक, और आप लोग भी ये ख्याल निकाल। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि भाई 3-4 गुरु ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया बेंजी को। लेकिन एक गुरु ऐसे भी थे, MM रफी साहब, वो 75 ईयर्स ओल्ड थे उस समय, लेकिन वो तैयार हुए बेंजी को सिखाने के लिए। और वो बेंजी को सारे गामा पाधा निसा के जो बेसिक नोट्स हैं वो उसको बेंजी को सिखा दिया। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट होना हो तो उसके ग्रामर को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बेंजी म्यूजिक का जो मेन ग्रामर है वो सारे गामा पधा निसा है, जो बेंजी के ब्लैंक माइंड में काट दिया उन्होंने। सबसे अच्छा काम और सबसे बड़ा काम जो एक गुरु दे सकता था वो MM रफी साहब ने दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने उस समय वो 75 ईयर्स के थे, लेकिन उन्होंने अपना ये काम किया बेंजी के लिए। और आज बेंजी को, मेरे को लगता है, बेसिक नॉलेज जो म्यूजिक का है वो उन्हीं से मिला। तो ऐसे धीरे धीरे कारवां आगे चला गया। तो जब हम स्टेज पे, जब बेंजी ने कुछ गाना शुरू किया, स्टेज जो शोज करते थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरी बेटी है, ये गाएगी और आप इसको चांस दीजिए। तो बेंजी को देख के सब मना करते थे, कोई नहीं रेडी होता था इसको चांस देने के लिए। फिर हमने सोचा कि चलो CD बनाते हैं, अगर ये सामने नहीं गा रही है, नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है लोगों पे,
तो सीडी बनाते हैं, क्योंकि ये इसका मूड होता था, लोगों के सामने कभी गाती थी कभी नहीं भी गाती थी। तो मैंने कहा निगेटिव इंप्रेशन जा रहा है ये तो हमने कहा कि क्यों ना सीडी बना ले और हम सीडी सबको दिखाएं कि भैया ये बच्ची ये गा रही। तो बहुत लोगों के पास भेजा हमने सीडी रिकॉर्ड करके, लेकिन किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन शुभा मुद्गल जी ने हमें कहा कि नहीं, बच्चे में पोटेंशियल है। हमने उनसे ये पूछा था कि क्या हम बेंजी का म्यूजिक को कंटिन्यू करें, क्या कुछ दिखता है आपको? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर आप कंटिन्यू रखें तो, क्योंकि बच्चे में सुर ताल की समझ है और पोटेंशियल है, आप कंटिन्यू रखो। तो पहला जो क्रेडिट है, जो जिनसे मोरली हम लोग बूस्टअप हुए थे, वो शुभा मुद्गल जी ने। उसके बाद हमें ऋतिक रोशन जी ने काफी हेल्प किया। जो बेंजी को आज पहचान सच में मिली है, जो पहला नेशनल अवार्ड जो बेंजी को मिला, वो ऋतिक रोशन की वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने बेंजी के सीडी को रिलीज भी किया और बहुत अप्रिशिएट, और मुंबई में बुला के बेंजी से पर्सनली वो मिले। और तो कहते हैं ना कि निगेटिव बहुत लोग मिले और गिराने वाले बहुत लोग मिले, डराने वाले बहुत लोग मिले, अंधकार में कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में अब कुछ नहीं है, आप लोग अब खत्म हो, ऐसे लोग भी बहुत मिले। लेकिन बैक साइड से भी ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने बेंजी के टैलेंट को समझा और हमें अप्रिशिएट किया और हमारे स्ट्रगल को समझा कि अगर एक ऐसी लड़की जिसका मेंटल कंडीशन ऐसा है, देखिए कोई भी बच्चा गाना गा रहा हो वो भी बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है कि वो छोटी बात है, लेकिन जो कंडीशन बेंजी की है या हमारे बच्चों की है, ऑटिज्म वाले बच्चों की, उस कंडीशन में अगर वो एक बोतल ढक्कन का खोलकर फ्रिज से पानी निकाल के पी लेता है और वापस ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देता है, तो ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग निकल जाता है इस अचीवमेंट को करने के लिए। लोग समझते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, ये क्या पागलों वाली जैसी बात कर रहे, कौन सी बड़ी बात। लेकिन हम पेरेंट्स जानते हैं कि इस एक्टिविटीज के लिए हमें कितने साल का इंतजार करना पड़ता है। तो वैसे ही हमें 25 साल का ये जो सफर है, ये यूं ही नहीं तय हो गया। इसके लिए हर एक घंटा मैंने बेंजी के साथ वर्कआउट किया और हर घंटे में उसके लाइफ को डिजाइन करके किस समय में उसका मूड कैसा है, तो वो गाना सुनेगी कि नहीं। अच्छा, मैंने वो सारा नोटिस किया कि सुबह के वक्त ये बिल्कुल नहीं ध्यान देती थी गाने के ऊपर। जो मेन टाइम था इसका, ये 6 to 8 इवनिंग में क्या होता है, हमारे जो नर्व्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिमुलेट होते हैं और वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करते हैं तो म्यूजिक के। तो वो मैंने वो 6 to 8 आज के डेट में भी, ये दिन में बोलो गाना गाने के लिए तो नहीं गाती है, लेकिन 6 to 8 में ये आप जितना भी गाना इससे करना। तो वो धीरे धीरे बारीका एक एक चीज, हालांकि मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं थी, मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बेंजी के साथ काम कर करके सारा मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता गया। तो फिर मैंने और बच्चों के साथ काम किया और मैंने धुन फाउंडेशन फिर बनाया और बच्चों को म्यूजिक थेरेपी के थ्रू जो भी गाइडेंस चाहिए होता है या पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि अगर बच्चे में पोटेंशियल है तो आप काम करो, रिजल्ट मिलेगा, बट इसके लिए आपको वेट करना है, जैसे हमने बेंजी के लिए वेट किया 25 साल। बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो गुरु है, गुरु भी बहुत पहुंचे हुए गुरु चाहिए। हर शिष्य को पहचानने के लिए भी आम गुरु की आवश्यकता, मतलब आम गुरु से भी ज्यादा बड़ा गुरु चाहिए। और जब हमारे जो शिष्य अगर वो बहुत ही विशेष हो तो गुरु भी बड़े विशेष लेवल के गुरु चाहिए। तो आपका तो एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फिल्म जगत के बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी बेंजी का बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हमें ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अगर स्टेज पे नहीं गाता तो सीडी बना के तो गा ही सकता है। बहुत ही अच्छा आपने कहा। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे भी पेरेंट्स हैं या जो भी हैं वो कुछ आगे बढ़ के इस बात को सीखने की कोशिश करें। तो रीवा जी हैं, रेवा जी, REW, रेवा जी, आप यू वांट टू से समथिंग? यस, आपने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप डायरेक्ट पूछें तो अच्छा रहेगा। रेवा जी, यू कैन स्टार्ट योर, या यस, रेवा जोशी। हाँ, नैन्सी मैम से पूछना चाहती हूँ कि हमको कैसे पता चले कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट दिखाता है। तो मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे ही। अच्छा, अगर इंटरेस्ट बहुत चीजों में है तो पता कैसे चले? वेरी गुड। पता ये चलेगा कि आपने 5 चीज रखा उसके सामने
लेकिन वो 5 चीज में सेम इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। किसी न किसी ऐसी चीज होगी जो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर आपने 5 आइटम उसके पास रखा या 5 आइटम इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें से 1 या 2 में वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो उसी 1-2 को पकड़िए आप, और उसी 1-2 में ही उसको नर्चर करना शुरू कीजिए। मान लीजिए अगर लड़का है तो स्विमिंग है, साइकिलिंग है, बहुत तरह के स्पोर्ट्स हैं। लड़की है तो घर, अगर म्यूजिक की जरूरी नहीं है, घर का काम में अगर उसको अच्छा मजा आ रहा है, कुकिंग में मजा आ रहा है, होम डेकोरेशन में अच्छा लग रहा है, कुछ अगर आपने देखा कि घर में कोई कपड़ा गलत तरीके से रखा, उसने उठा के ठीक कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बच्चे ने एक कितनी छोटी सी हरकत की, जो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम उसी को इनकरेज करके उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाएं कि भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर कपड़ा गलत तरीके से रखा हुआ है और उसको उसने उठाकर सही तरीके से रख दिया, तो हम उसी में उसको आगे ले जा सकते हैं कि भाई इसका इंटरेस्ट दिख रहा है। तो आप सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कीजिए 4-5 चीज से, और जिस चीज में सबसे ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखा रहा है उस एक चीज को आप पकड़ कर चलिए, और बाकी चीज में अगर वो कर रहा है तो, क्योंकि देखिए ये सारे बच्चे ना वन ट्रैक माइंड होते हैं। अगर आप 10 चीज इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब एक चीज में अगर मास्टर करना है तो एक चीज को पकड़ के चलिए। और अल्टरनेटिव थेरेपी इनके लिए बेस्ट है, कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी, क्योंकि पढ़ाना लिखाना हम कहाँ तक ले जाएंगे इनको। बहुत हुआ तो मैट्रिक तक, हाँ कुछ बच्चे हैं जो डिग्री भी ले रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बट वो बहुत लिमिटेड बच्चे हैं। तो लेकिन हमें अपने मेन बच्चों को ये देखना होगा कि अल्टरनेटिव थेरेपी लें और उनको इंट्रोड्यूस करें 4-5 चीज, और सबसे अच्छा जो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ें। जी ओके मैम, Sir, you want to say something? Yeah. जी सर, जो इनका सवाल है ना कि मैं जैसे ये जो लाइनें रखी थी मैंने लास्ट के लिए रखी थी, मगर मौका अभी आ गया तो अभी मैं बोल देता हूँ कि एक तो ये है ना कि ऐसा कहते हैं, सर आवाज आ रही है ना? जी पूरी बुलंद कि नो बिल्डिंग इन दिस वर्ल्ड कैन रिप्लेस योर हाउस। इस संसार का कोई भी भवन, कोई भी बिल्डिंग जो आपका घर है, चाहे वो छोटी सी झोंपड़ी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। वहां जाकर के आप 2 दिन 4 दिन आनंद से बिता लेंगे, फिर आपको अपने घर की याद आ जाएगी। सिमिलरली ऐसा कहते हैं कि नो लेडी इन दिस वर्ल्ड कैन रिप्लेस योर मदर। माँ को कोई भी दूसरा जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। माँ जो अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तीसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मदर जो है, शी इज दी वन ऑफ द क्लेवरेस्ट लेडी। सबसे ज्यादा चालाक होती है, सबसे ज्यादा चतुर होती है कि जो काम बच्चे नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो उनसे प्रलोभन दे करके, कहानी सुना करके, चुटकुला सुना करके, कुछ भी करके वो काम करा लेती है। अक्सर जैसे होता है सर्दियों में बच्चे नहाते नहीं है, नहाने से बहुत कतराते हैं, ठंड लग रही है, ये हो रही है, तो वो खिला देती हैं। देखा होगा, मैं अपने घर में देखता हूँ, आई हैव गॉट माय ग्रैंडसन्स, तो उनकी मम्मियां जो है उनके पीछे प्लेट लेके घूमती रहती हैं, मगर वो जब तक खाना खाने लेता छोड़ती नहीं है। तो मदर जो है कर देती हैं। जो उन्होंने बात की पहचान की कि हम उसका इंटरेस्ट कैसे देखें, कि ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। नंबर 1 कि वो बच्चा स्पेक्ट्रम में कहाँ पर है। हम ऑटिज्म कहते हैं ना, इट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो वो स्पेक्ट्रम में जो कहाँ पर है वो हमको देखना है, नंबर 1। नंबर दूसरा, वो रिपीटेडली कौन सी एक्टिविटीज को करता है, इसमें ज्यादा होता है। वो खिलौनों को लेकर के उनको तोड़ना जोड़ना करता है, या जैसा भी कविता जी ने बताया कि सामानों को, क्योंकि ये इनकी स्पेशलिटी होती है कुछ बच्चों में कि वो चीजों को डिसऑर्डर में नहीं देख सकते, इट शुड बी इन देयर प्लेस। तो वो उस तरीके से हम उन बच्चों का इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं। इट इज प्योरली थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ द मदर और द फैमिली मेंबर्स के हम बच्चों के इंटरेस्ट को पता कर सकते हैं। ग्रेट। मेरे पास बहुत सारे और सवाल हैं, बलमीत जी का, जिज्ञासा का, शालिनी का, कविता पन्नू जी का। आई टेक ऑल द सवाल। आप जितने लोग हैं सवाल आप लिख सकते हैं इसमें,
मैं आप सबसे बात शेयर करूंगा। मैं जाऊंगा नीरजा जी के बारे में। और आज जब गुरु की बात हुई है नीरजा जी, तो आप ये बताइए कि अभिनव का जो पहला गुरु है वो कौन है? क्या आप हैं या और कोई है? जब वो नृत्य सीखना प्रारंभ किया तो किसने इसको नृत्य सिखाना शुरू किया, और वो अभी कहाँ नृत्य सीख रहा है? सो हु इज द फर्स्ट गुरु ऑफ अभिनव टू टीच हिम डांस? ऑल्सो शेयर वेयर ही इज लर्निंग द डांस नाउअडेज। या देखिए सर, अभिनव का डांस मतलब गुरु तो ये अभी एक्चुअली क्या है, जैसे अभी कविता जी ने भी बताया, और जैसे अभी क्या है कि अभिनव ना एक जो इसने सबसे पहले जो काम शुरू किया, जो भी कुछ किया, तो उसने डांस से ही शुरू किया। तो वैसे तो ये बोर्न डांसर है खुद, मतलब शुरू से पैदाइशी डांसर कहेंगे इसको। डांसर बाय बॉर्न। और अभी कहाँ सीख रहा है, या ये सिर्फ सिखा रहा है? नहीं, अभी ये श्यामक दावत डांस एकेडमी है जो नोएडा में, वहाँ पे जाते हैं। श्यामक डांस एकेडमी से डांस सीख रहे हैं ये। हाँ, लेकिन और इस मामले में सर अभिनव बहुत लकी है कि अभिनव का एक गुरु नहीं, बहुत सारे डांस गुरु हैं अभिनव के। तो वैसे तो अभिनव ने मतलब जब तक वो स्कूल जा रहा, छोटा था, तब तक उसने अपने आप से डांस किया, टीवी से देख के, ऐसे अपने आप से। मतलब म्यूजिक इसकी रग रग में बसा हुआ था। जैसे म्यूजिक सुनता था, इवन गाना तो छोड़िए आप, जैसे कोई ऐड आ रहा है, ऐड की आवाज से वो फोन की जो रिंगटोन बजती है उससे वो डांस करता था। तो म्यूजिक जैसे ही सुना उसने डिफरेंट रिदम अपने लेके आता था वो। वेरी गुड। और तो इसका जो डांस का जो पहला दूसरा, वो कुछ याद है कि पहला बहुत बड़ा शो या और खूब बड़ा सा शो जहाँ पर खूब सारा इसको शाबाशी मिला? वैसे तो हर जगह मिलता होगा। जी हर एक डांस या एक चीज बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि अभिनव ने वो डांस इतना भर दिया हम लोगों के। पहले तो ये था कि जैसे कहीं मतलब टीवी में देखा, ऐड देखा, पहला डांस उसका वही था कि बैठ नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बस सपोर्ट लेके हम लोग बिठा रहे हैं तो हाथ पैर ऐसे ऐसे करके वो हिलाने लग गया। लेकिन इसको पहला जो इसका डांस शो था वो स्कूल में हुआ, इसका एनुअल डे स्कूल, जैसे ये वेलविंग स्पेशल स्कूल में जाता था, तो वहाँ से इसकी डांस की जो स्टेज परफॉर्मेंस शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई है इसकी। और एक जो गुरुकुल का जो इवेंट हुआ था वो मनो विकास। अच्छा, वो तो स्टेज शो हुआ था, नेशनल स्टेज शो। जी, तो वो उसमें अभिनव मतलब फर्स्ट उसका। हाँ, वो तो बहुत बड़ा शो था उसका। तो ये डांस उसका तो ये है ही उसमें। आई थिंक रनर अप था या विनर था, भगवान जाने। लेकिन हाँ जी सर, काफी अच्छा था। फिर इसका इस्लामिक कल्चर उसमें हुआ था, इंडिया इस्लामिक सेंटर में। यस ग्रेट। तो जी, तो इसी तरह से उसको फिर उसको मतलब वहां से शुरुआत हुई। तो अभिनव के गुरु मतलब अभिनव खुद है, मैं हूँ, और डॉक्टर रीटा वट स्वयं भी हैं, संजय सर हैं, और एक छांव स्पेशलिस्ट है जो है, एक वो बॉलीवुड तो ये खुद करता है, थोड़ा कंटेम्पररी या कुछ स्पेशलिस्ट हम कराते हैं। तो एक कोलेश्वर सर हैं, इनाम सर हैं, तो ऐसे बहुत सारे मतलब गुरुज जुड़ गए अभिनव। बहुत सारे गुरुज हो गए। अभिनव बहुत लकी है इस मामले में कि अभिनव को इतने गुरु और इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स उनसे मिल रही हैं। और अभी जो जा रहा है वो श्यामक डांस एकेडमी से कर रहा है। ग्रेट। बलमीत जी, आप कह रही थी कि आपका कोई बच्चा बड़ीच में बहुत दूर किसी रिमोट एरिया में है और उसने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसके बारे में बताएं। जी सर। सर अमिताशा सिन्हा आपके साथ वेबिनार में भी जुड़ती है। अमिताशा सिन्हा जी, और वो बच्ची जो है स्टार्टिंग से हमारे स्कूल में पढ़ी है, और इस समय नेशनल लेवल पे इसने काफी सारे गेम्स वगैरह में नेशनल अवार्ड जीते हैं। एक दिन उसने आपके वेबिनार में बहुत सारे मेडल्स भी दिखाए थे। वेरी गुड। और जी, और अभी जस्ट जो है स्पेशल ओलंपिक में डांस कंपटीशन जो हुआ था सोलो, उसमें ये अपने ग्रुप में 3rd पोजीशन पे आई है। वेरी गुड। तो अमिता की मम्मी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ जुड़ी हैं सर, वेबिनार में हैं। वेबिनार में भी है और मन भावन में भी आती है। कल भी बहुत अच्छा ये जो है म्यूजिक बोल रही थी। यस, अमिता जी अमिताशा की मम्मी है बोलिए वेबिनार में। जी बोलिए, अमिताशा की मम्मी कुछ बोलना चाहती हैं आप अमिताशा के बारे में? ये तो बहुत सारा गोल्ड मेडल लेकर आई थी एक दिन हमारे स्पेशल ओलंपिक वाले एपिसोड में। कुछ बोलना चाहती हैं आप? अमिता की मम्मी, अमिताशा की मम्मी।
हाँ माइक सर बोल दीजिए, माइक म्यूट ऑन कर लें। ऑन है माइक, यस माइक ऑन है, आप बोलिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, यस ऑन है। कहाँ है अमिताज? हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए। कहाँ गई? मम्मी को बुला रही हूँ। मम्मी तो हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आंटी। मशोरा ग्रुप में अभिनंदन है हम लोगों का। मैं निताशा की मम्मी बोल रही हूँ। जी जी। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बोलिए। आवाज आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। जी जी आ रही है आवाज। मैं निताशा की मम्मी बोल रही हूँ। निताशा मेरी बेटी है जो मानसिक मंडित है और ये खेल में बड़ी रुचि है, संगीत में भी बहुत रुचि है, पर ये बोल नहीं पाती है सर। बहुत प्रयास किया है इसके लिए, बहुत दवाया है कि लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर बंदित कौर जी के साथ हम जुड़े और उनके दिशा निर्देशन में मेरी बच्ची निरंतर प्रगति करती गई। आज वो इस मुकाम पर है कि वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित है। वो अच्छी गेम खेलती है, एथलीट सकती है, कई इसमें अवार्ड देते हैं और ये क्राफ्ट में भी रुचि रखती है। क्राफ्ट में मोजे बनाती है, म्यूजिक में इसका विशेष रुचि है और ये अभी नृत्य में भी जो नेशनल लेवल का नृत्य हुआ था उसमें भी ये अपने थर्ड स्थान प्राप्त किया। जो 29 सितंबर को जो रिजल्ट आया था उसमें इसने थर्ड प्राइज प्राप्त किया है, थर्ड स्थान प्राप्त किया है और इसको बढ़ाने में हमारी बलवीर जी का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो, आप लोगों में कुछ मशवरा दें जिससे ये बच्ची आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और ये तो बहुत ही एक्टिव है। ओह आज तो बेंजी भी आ गई। हाँ इसकी नींद पूरी हो गई। नींद खुली हो। शालिनी की मॉम है, वो कुछ कहना चाहती हैं। शालिनी या हेलो सर, हाय नमस्कार। सर मेरा बेटा है श्रेयांश, शालिनी मैं हूँ, मेरा बेटा है श्रेयांश जो कि बहुत ही इंस्पायर्ड है आपसे एंड ही हैज बीन doing his small bit of volunteering with you and thank you so much sir. I just want to ask Kavita ma'am, आपका बेटा है, हम लोग तो उल्टा ही जी सर। यस सर आपने बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपसे सर। थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। जी श्रेयांश कम हियर। सर श्रेयांश, इसका नाम श्रेयांश है और यस आप काफी इनकरेज किए हैं सर। आई वोंट टेक मच टाइम सर, बस एक क्वेश्चन था। हम बेंजी की बात कर रहे हैं, अभिनव की बात कर रहे हैं, तो I'll just say one thing sir, behind all your stories is always your mother's story because hers is where yours begins. तो मैं कविता मैम और नीरजा मैम से पूछना चाहूंगी कि there would have been times जब आप बहुत हतोत्साहित हुए होंगे काफी बार, तो कौन सा एक पुश था जो आपको हमेशा निरंतर आगे बढ़ाता रहा? मैम प्लीज शेयर करें। जरूर। कविता जी आपसे ही पहले स्टार्ट करेंगे। यस बहुत ही अच्छा, थैंक यू। एक बार नहीं, लाइफ में बहुत बार ऐसे मौके आए और ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आया कि लगा कि अब सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने हमारे दिमाग में ये भर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि पेरेंट जो हैं बच्चे की साइकोलॉजी को जितना ज्यादा समझ सकते हैं उतना कोई और नहीं समझ। बेंजी के पापा का बहुत बड़ा एक रोल है जो इन्होंने बेंजी के होते ही एक्सेप्ट किया कि हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है। और इन्होंने जब बेंजी 4 साल की थी तब हम अमेरिका इसको लेकर गए थे। मतलब कहने का बात यह है कि हमने कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा और मोरली हम लोग बूस्टअप रहे। मेरे हस्बैंड जो थे, जबकि बेंजी मेरी पहली चाइल्ड थी और मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं अपने मम्मी पापा के, तो उनके मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था कि भाई बेटा होता और अच्छा, चलो ये बेटी है,
हालांकि वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रवीण जी के पापा थे, उन्होंने कभी भी इसको एज अ मतलब ये नहीं लिया कि हमारे घर में स्पेशल चाइल्ड हुआ है, बल्कि उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया और मेरे को भी मोरली बूस्ट अप करके रखते थे। मैंने एमए किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम जॉब करो या ये करो। उन्होंने कहा आप बच्चे को देखो और मैं पूरा रिसर्च वर्क करता हूँ, और हम लोग जो, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम इसको बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं, तो सबसे पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम बच्चे के लिए कुछ करें, समाज बाद में आता है। तो जैसे शालिनी ने कहा, तो हम लोग भी बहुत बार टूटे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार टूटे, बहुत बार बिखरे, फिर खड़े हुए। और क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने नेशनल लेवल का बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेला हुआ है, तो उसमें होता है ना कि हम स्पोर्ट्समैन कभी गिव अप नहीं। यस, फाइटिंग स्पिरिट है मैम, इसीलिए। यस, बस वही चीज एक मेरे को, जो अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे को भी बिलीव नहीं होता है कि मैंने कैसे इतना लंबा सफर, इतना बड़ा स्ट्रगल कर लिया। तो मेरे को अभी भी महसूस होता है कि शायद वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही काम कर गया मेरा, जो मेरे अंदर वो जज्बा था कि मेरे को गिव अप नहीं करना। क्योंकि आप जब खेलते हो तो कितना नेगेटिव हुटिंग होता है, नेगेटिव हुटिंग होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपको चीयर अप नहीं करते, आगे अपोजिट पार्टी को चीयर अप करते हैं, तो वो सब चीज झेला हुआ होता है इंसान, तो फिर हिम्मत आ जाती है अंदर से। गुड। और अभिनव, नीरजा जी, आपका क्या है, फाइटिंग स्पिरिट क्या है आपका? यार देखिए, हम लोग स्पेशल बच्चे के स्पेशल माँ बाप हैं, तो ये फाइटिंग तो है ही। जैसे अभी कविता जी ने बताया तो कि लाइफ में ये ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे ये सब, बट वही है कि जहाँ से हमको लगता है ऐसा, तो कई बार लगता है कि बहुत दिल टूटता है कि अब तो सारा कुछ खत्म नहीं हो सकता, चलो बैठ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बच्चे की आंखें हमसे कुछ बोलती हैं, बच्चे का मन हमसे कुछ कहता है, फिर लगता है नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो हमें करना है। एक बार हुआ ऐसा कि एक फर्स्ट ऑडिशन था अभिनव का, हम लोग वहाँ पे गए, उसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, तब तक उनको ये नहीं पता था कि ये स्पेशल बच्चा है। तो वहाँ पे गए, जैसे ही हम लोगों ने सेकंड किया, अभिनव ने बहुत अच्छा डांस किया। एक्चुअली उन्होंने डांस को पूरा देखा ही नहीं, वो बीच में स्टॉप कर दिया उसका सॉन्ग। तो अब वो था कि अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, तो लगा कि नहीं, बीच में एकदम से रोक क्यों दिया, अगर 1.5 मिनट का टाइम है तो 1.5 मिनट का टाइम तो दीजिए उसको। तो उसका आधा मिनट भी नहीं हुआ, उसका सॉन्ग रोक दिया और एकदम से बंद कर दिया कि नहीं हो सकता, तुम जाओ। तो मैं अंदर गई, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया, मतलब एटलीस्ट उसका कंप्लीट होने दीजिए, वो होता है नहीं होता है वो बात की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा मन का ऐसा तो रूल में कहीं नहीं लिखा कि आपने ऐसा कर दिया। पता चलता है कि नहीं, वो एक स्पेशल बच्चा है तो इसलिए नहीं करता। तो थोड़ा सा हुआ बहस कि स्पेशल बच्चा है तो आपको लिख देना चाहिए, या पहले फॉर्म फिल किया, सब कुछ बता दिया, पहली बार कर लिया, तो आपने अब ऐसा क्यों किया। तो वही था। लेकिन अभी ना एकदम से देखता है, वहां से मेरे से पूछ रहा है कि माँ बंद क्यों कर दिया। उस टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका, लेकिन वो होता है ना कि जब मन में आप अपनी चाह रखेंगे कुछ करने की, तो वो जरूर होता है। उस दिन लगा, बहुत दुख हुआ, पूरा दिन बहुत खराब हुआ, रात भर में रोती रही, हस्बैंड से शेयर किया, लेकिन कहीं ना कहीं अभिनव देख रहा है तो वो सीन आंखों में आता रहा और लगा नहीं है, कुछ तो करना है, ऐसे नहीं हो सकता। और वही है कि अभिनव एक डांस इंडिया डांस मुंबई तक जा चुका है, और वो मास्टर मर्जी के साथ में, और जो उनके जजेस थे उनके सब साथ परफॉर्मेंस कर चुका है। तो ये तो फाइटर खुद अपने आप में। तो वही है वैसे कि जो लोग हम लोगों को कहीं से ऐसा करते हैं, तो हमें कभी मतलब हताश नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लोग, और वो लाइफ में बहुत जरूरी है, करना चाहिए, और वो चैलेंजेस आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो हमें मतलब हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम वहीं तक रह जाएंगे। तो वो सब चीजें, और ये ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगी, लाइफ में आती रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी। ग्रेट। कार्तिका जी हैं, कार्तिका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या कार्तिका जी, कार्तिका गुगनानी जी। ओके, देन कार्तिका जी नहीं है तो कविता जी। कविता जी तो बोल दिया, कविता पन्नू, कविता पन्नू जी, कविता पन्नू जी। हाँ जी बोलिए, कविता पन्नू जी, यू वांट टू से समथिंग? ओके,
थैंक यू, थैंक यू। आज तो एक बहुत अच्छा क्लियर हो गया शालिनी जी आपके थ्रू कि ये श्रेयांश है, और मैं बार बार शालिनी जी को प्रेज करता था अपने मशवरा में भी और मन भावन में। तो थैंक यू श्रेयांश। अब तो श्रेयांश वॉलंटियर है। ओके, सो एनी क्वेश्चन एंड आंसर एनीबडी यू कैन पुट इट हियर। और मशवरा में राखी रमोला द्वारा सांकेतिक भाषा में भी अनुवाद उपलब्ध है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। Then I'll go to Kavita ji. Give some tips for other parents and community to understand from where to start the training in a special child. आप जो हमारे अन्य माता पिता हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उन्हें वो कुछ समझाइए कि जो बच्चे के प्रशिक्षण के बारे में होता है कि कहाँ से कब से स्टार्ट करना चाहिए, कि किस तरह से हमें उसके लिए प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, तो हमारे लोगों को बड़े कुछ इंफॉर्मेशन जाएगा जी। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के साथ 24 आवर्स रहते हैं, और माँ जो होती है वो सबसे ज्यादा अपने बच्चे के साथ है। तो जितना साइकोलॉजी हम लोग अपने बच्चे की समझ सकते हैं, उतना दूसरा कोई और नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहिए, और एक पेशेंस रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और पेशेंस के साथ अगर वो ये बात कबूल करे, सबसे बड़ा एक्सेप्टेशन होना चाहिए कि उनको ये बात समझना चाहिए कि उनके साथ एक स्पेशल बच्चा है, और अब उनको उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेटल करना है। और जब ये बात समझ जाते हैं और उन बच्चे का साइकोलॉजी को समझ के, जो भी टैलेंट हो, मैं शुरू में भी कहा मैंने कि जरूरी नहीं है वो म्यूजिक ही हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, कल्चर हो, कुछ भी हो, उस टैलेंट को लेके उसको नर्चर करें, और बच्चे को समाज से छुपाए नहीं, और अपनी मर्जी जो है उस पर कभी ना थोपे। जैसे आप चाहते हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा ये करे वो करे, मैं कहती हूँ अगर वो ना करके, क्योंकि आप एक नॉर्मल बात भी कर लोगे, अगर आपको आपके इंटरेस्ट का काम दिया जाए तो आप उसको खुशी खुशी करते हो, और आपके इंटरेस्ट का काम ना दिया जाए तो आप नहीं करते हो। तो यही सिंपल सी साइकोलॉजी बच्चों के साथ अप्लाई कीजिए कि जो इसका इंटरेस्ट हो उसमें आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, और आपको रिजल्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है तुरंत मिले, कुछ समय के बाद जरूर मिलेगा। और जो घर के अंदर जो माँ बाप के साथ भाई बहन हैं, या जो एल्डर हैं, दादा दादी हैं, ये हैं, उन सबको एक तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे साथ एक स्पेशल बच्चा चल रहा है, और उनका लाइफ स्टाइल जो है एक डिजाइन तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एक्टिविटीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बच्चे सीख लेते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं भले ना बोल पाए, लेकिन आपकी भावनाओं को, आपकी एक्टिविटीज को सब समझते हैं। अपनी भावना को भले ये नहीं शब्दों में बयान कर पाए, लेकिन ये इंटेंशन समझते हैं आपका। तो इसलिए आप इनके सामने एक मोरल बन के रहिए, और एक अच्छी जैसे कहते हैं ना, लाइफ स्टाइल सेट कीजिए, ताकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो चीज सीख रहे हैं, जैसे कुछ चीज तो हम सिखा देते हैं इनको, और कुछ ये अपने आप सीख जाते हैं। अब माँ बाप हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है, तो बच्चे भी वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगर गलत वर्ड यूज कर रहे हैं या कुछ, तो वो बोलते हैं हमारे बच्चे ने गलत वर्ड सीख लिया, वो स्कूल को ब्लेम करते हैं, इधर को ब्लेम करते हैं, उधर को। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। आप जो चीज उसको दिखा रहे हैं या घर के माहौल में रख रहे हैं, वो अपने आप को सीख जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सराउंडिंग जो है, बच्चे का जो सराउंडिंग है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हम नहीं हो सकते परफेक्ट, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को जो भी चीज उसके आसपास सराउंडिंग में हो रहा है वो सही तरीके से हो, और जो भाई बहन है उसके, वो उसको सपोर्टिंग रहे। वो उनको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरा भाई ऐसा है या मेरी बहन ऐसा है। उनको समाज से छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो पार्क में जा रहे हैं तो बच्चे को भी लेके जाए, अपने भाई को भी लेके जाए, अपनी बहन को भी लेके जाए। थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, आप ऑन द स्पॉट, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बेंजी को लेके मैं बस स्टॉप पे जाती थी, बस के ऊपर चढ़ाने के लिए, स्कूल बस में। तो वहाँ बच्चे बेंजी के को देखकर हंसते थे और इसका मजाक उड़ाया करते थे। मेरे को बहुत बुरा लगता था कि भाई ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। सेम एज ग्रुप के बच्चे थे। तो मैं एक दिन पहले चली गई वहां पे, और मैंने सब बच्चों को बोला कि भैया तुम बताओ 5 2 जार कितना होता है, या क्योंकि बेंजी मैथ में अच्छी थी और कैलकुलेशन इसने पूरा कर रखा था।
तो जब मैं उन बच्चों से पूछ रही थी तो बेंजी ने फटाफट बताना शुरू कर दिया कि 5 2 जा 10 होता है। तो वो बच्चे, अब नेक्स्ट डे जब मैं बस स्टॉप में गई तो वो बच्चे अब ये नहीं बोल रहे थे कि देखो वो लड़की आई है, कैसे कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि देखो ये वो लड़की है जिसको टेबल सब याद है। मतलब उनका टॉपिक बदल गया, उनके अंदर अवेयरनेस आ गया कि नहीं इनको भी कुछ आता है। तो कहने का मतलब है कि समाज में अवेयरनेस आना है। कैसे लाना है ये थोड़ा सा ट्रिक, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अब भाई बहन ही हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि कैसे इन बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए, इनके साथ हैंडल किया जाए। तो उनको एक तरीके से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहिए कि बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए। और ये बच्चे जो कर सकते हैं, बहुत से नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते वो जो ये बच्चे कर सकते हैं, बहुत सारे नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें बतानी चाहिए कि देखो बेटा, अगर तुम में ये टैलेंट नहीं है लेकिन ये बच्चा ये कर रहा है, तो इनको कभी भी आप माइनस पॉइंट नहीं कर सकते या हेड स्टिच से नहीं दे सकते, क्योंकि इनको दया नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये इनको वो नहीं चाहिए कि आप दया दें और वो करें, है ना। अपॉर्चुनिटी। हेलो हाँ जी या आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मौका दीजिए, आप इनको मौका दीजिए, और इन पे दया नहीं चाहिए इनको। गुड। तो पेरेंट्स और माहौल, घर का माहौल जो होता है वो अच्छा बहुत होना चाहिए। इम्पोर्टेंट, यस बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ सीख जाता है घर से ही। पहला टीचर माँ बाप ही होते हैं, स्कूल और समाज बाद में आता है। डेफिनेटली। और मैं इसी तरह से मैं जानना चाहूंगा नीरजा जी के बारे में कि नीरजा जी, आपने भी बहुत सारे ड्रीम देखे होंगे अभिनव के लिए, बहुत सारे प्लान किए होंगे अपने, जो आपके बहुत ही हृदय के करीब होगा। सो व्हाट इज योर ड्रीम फॉर अभिनव एंड प्लान विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? क्या योजना बनाई है आपने इनके लिए, अभिनव के लिए? देखिए सर, अभी तो अब तो अभिनव को देख के लगता है कि जैसे अभी डांस के या एक्टिंग के या मॉडलिंग के ही फील्ड में जैसे जा रहा है, तो लगता है कि अब हम मतलब जान रहे हैं अभिनव को सब। तो अभिनव ने जो किया है, जितना फेस किया है, सफर किया है, जो वो उन बच्चों के लिए आज अभिनव रोल मॉडल है, ये सब है। तो हम यही सोचते हैं कि अभिनव का कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ कि अभिनव उन बच्चों को, जो बच्चे मतलब करना चाहते हैं लेकिन समाज उनको मौका नहीं देता है या समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग वो भुक्तभोगी हैं, हम लोग वो समझ सकते हैं। तो अभिनव मतलब हम लोग कुछ ऐसा करें, एक इंस्टीट्यूट ऐसा हो हम लोगों का, ऐसा कुछ। क्योंकि अभिनव उन बच्चों को, जो अभिनव अभी कर रहा है, बहुत छोटा सा एक शुरुआत की है उसने, कि वो डिफरेंटेबल नॉर्मल बच्चे भी आते हैं उसमें, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, तो बाकी डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, उन सब बच्चों को अभिनव डांस थेरेपी देता है, डांस सिखाता है उनको। तो वो सब आगे कुछ अच्छे लेवल पर कर सके, और जहाँ भी अभिनव को मौका मिलता है तो अभी उनको स्टेज परफॉर्मेंस भी दिलवाता है। तो अभी तो खैर ये कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है, तो हमारा एक यही है कि अभिनव एक बहुत बड़ा अभी है लोगों के लिए रोल मॉडल ऐसे, तो वो बने, और एक उसका इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें सब बच्चे उसका आए, और जो अभिनव जैसे सभी बच्चे और आगे खूब जाएं, जैसे अभिनव कर रहा है, बेंजी हैं, ऐसे सभी बच्चे आगे जाएं। डेफिनेटली। और अभी भी जो है अभिनव का तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। मैं बेंजी को भी फॉलो करता हूँ, अभिनव को भी फॉलो करता हूँ, जितने भी हमारे इस तरह के कलाकार हैं, मैं जरूर मेरा जो लेजर टाइम है, जो रिक्रिएशनल टाइम है, वो इन लोगों की एक्टिविटीज को देखने में जाता है, और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आने वाले समय में तो डेफिनेटली अभिनव का कुछ अच्छा चीज होगा, और हम लोग से जो बन पड़ेगा, मनोविकास से जो भी सुविधाएं बन पड़ेगी, हम लोग आगे हैं आपके साथ। सर हाँ, तो वही है ना, देखिए सर, अभिनव मतलब वही है कि अभिनव यहाँ तक जो भी आया है, तो अभिनव के लिए सिर्फ एक हम ही लोग नहीं, आप सभी लोग, सभी गुरुज, आप सब लोगों का सपोर्ट है, और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, उसी से यहाँ तक पहुंचा है। यस। मैं बहुत सारे लोगों ने हमें अभी इसमें लिखा है चैट बॉक्स में कि मैं भी बोलना चाहता हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप mashwara.live के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर गुड प्रैक्टिसेस सीरीज का एक लिंक है,
आप उसको भरिए, भरकर आप हमें भेजेंगे तो जरूर मैं आपको जो हमारी टीम है वो पूरा इवैल्यूएट करने के बाद आपसे जरूर बातचीत करेगी और आपको जरूर मौका देगी यहाँ पर बातचीत करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, we are coming again on Saturday, October 3rd at 3 p.m. with a new topic on the career in the field of disability and rehabilitation, new perspective. और मैं एक और I can give you the very good announcement that we are going to celebrate our golden jubilee episode, 50th episode of Mashwara on October 14th, 2020. Please follow us. We are bringing you about 500 gifts, prizes for all the participants, speakers, and everyone. So please join us regularly, and you have to answer our quizzes. हमारे बहुत सारे quiz होंगे. You have to show the affiliation with मशवरा के आपने कितने maximum number of episode में मशवरा में ज्वाइन किया, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आपके पास जो मशवरा में ज्वाइन करने का प्रमाण है, उसको आप अपने पास रखिए. हम लोग अभी 1-2 दिन में क्विज ओपन करेंगे, 1-2 दिन में कंपटीशन ओपन करेंगे और फिर हम लोग आपको बहुत सारे प्राइजेस भी देंगे, बहुत सारे पुरस्कार देंगे और definitely we will celebrate in a mega event of our golden jubilee event on 14th October. तो आप प्लीज हमसे जुड़े रहें. हेलो सर, हम आने वाले शनिवार को 3 अक्टूबर को. यस अभिनव, या प्लीज यू वांट टू से समथिंग. बोलो. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे इनवाइट किया हमें. और मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं दोनों बेंजी को भी और उसको भी मन भावन में बुलाऊंगा, जो स्टेज तुम्हारा होगा. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, सो विल डेफिनेटली विल कॉल इनवाइट यू. सो आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हम लोग 14 अक्टूबर 2020 को मशवरा के 50वें गोल्डन जुबली एपिसोड का जश्न मनाने जा रहे हैं. कृपया हमें फॉलो करते रहें हमारे फेसबुक लिंक पर, हमारे सोशल मीडिया पे उसको शेयर करते रहें आप अपने भी तरफ से. और हमारे जितने भी प्रतिभागी होंगे, लगभग 500 का हम लोगों ने एक चुना हुआ है कि जिसको हम लोग उपहार और पुरस्कार देंगे. कृपया आप हमसे अगर नियमित रूप से जुड़े हैं, आप हमारे क्विज का जवाब दे रहे हैं, आप अपनी भागीदारी की अधिकतम संख्या हमें बता रहे हैं, तो हम मशवरा गोल्डन जुबली एपिसोड में जरूर आपको इनवाइट करेंगे. एंड विल गो फॉर द फाइनल रिमार्क्स बाय जेसी गुप्ता सर. और उसके बाद अगर कुछ होता है देन ओके सर. गुप्ता सर, आई वांट टू हियर शंकरन सर इज हियर. सो शंकरन सर जी, यू वांट टू से समथिंग? या यू कैन अनम्यूट सर. So very happy to hear the stories of two ladies, and my blessings always with them. And I congratulate the mom. Already JC Gupta साहब ने बताया, mom only can realize the goals of children. My wife also example for that. She always says that she has to get out of something from him. She used to say, my son, I want to share with you, my son is a very good vegetable, he will cut the vegetable very fast. Okay, even Suran, you know, the Suran is very difficult to cut. My son will cut within maybe within 10 minutes he will finish with a big Suran. So very happy to hear the good stories. And again, Kavita madam and Niraja, I'm right from the beginning, I'm listening. The enthusiasm you're showing towards your kid, no, is remarkable. So we have to find this, you know, from known only unknown can be extracted. Whatever available, from that only we have to achieve. Okay. And similarly, you said accept the reality. Yes. We have a a son or daughter with the disability. That two things, if you understand, no, we don't have any special child. All our childs are very, very blessed child, and definitely you are the inspiration to all of us. Not only this thing, even normal child also you are going to be a role model. Okay, thank you very much. Thanks for opportunity. Hello. Thank you very much. And I want to share with you when Veda and this thing, you know, our institute, I have read an article in Indian Express.
उसमें से हमको मालूम पड़ा ये वैदिक इंटरवेंशन विल बी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द कॉग्निटिव functions of people with intellectual disability. In fact, I was trying the Vedic intervention therapy, and for especially people with autism, we are introducing the Vedic therapy with the help of a neurologist. We are assessing the improvement so that we will publish some paper, some authentic scientific approach to people with intellectual disability through Vedas. That we are happy to tell in the forum. Thank you, Alok. Thank you very much. Thank you. Thank you. I would like to share you here, Shankaran sir. He is working with the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disability, Chennai. He is a dean there. So, and he has the son with autism, and he is doing lot of things. So, thank you, sir. Thank you for joining us. And thank you. And if anyone has any question, please drop in the message box. And in the meantime, I'll go to JC Gupta, sir. Please, sir. Thank you very much, sir. Sir, ये मतलब not about नीरजा जी या कविता जी, बहन जी और अभिनव, ये मैं हर एक पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि they should learn about the disability. सबसे आवश्यक बात जो होती है कि बच्चे के अंदर जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता है, उसको पहचानना चाहिए. वहां पर भी फाइंड आउट द पॉजिटिव्स. कि अक्सर क्या होता है, जब जैसे ही हमको पता लगता है तो हमको बताया जाता है ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो हमको वो नहीं देख करके ये देखना चाहिए ये क्या कर सकता है. तो फाइंड आउट द पॉजिटिव्स वो होना चाहिए. देन वी शुड कीप रिसर्चिंग. हमको अपनी खोज जारी रखनी चाहिए. जारी किसमें? लोकेटिंग एंड असेसिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड रिसोर्सेज. कि इन बच्चों रिसर्च करना चाहिए कि हम कहाँ जाकर के कहाँ हमको अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, कहाँ वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हमको वेलकम होगा, जहाँ हमको हीन भावना से नहीं देखा जाएगा. तो वो हमको खोज करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर ले जाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए जहाँ पर उनके हम सोचते हैं कि बच्चों का प्रभावशाली ट्रीटमेंट होगा, प्रभावशाली उनकी जो कमियां हैं उसका मैनेजमेंट होगा और उनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं. तीसरी बात यह है कि कोपिंग विद द इमोशंस एंड फिजिकल डिमांड्स. बच्चों की जो फिजिकल और इमोशनल डिमांड्स हैं उनके साथ में हम कैसे मुकाबला करेंगे, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, वो हमको सोचना चाहिए. उसके लिए सॉल्यूशंस मैं नहीं बता सकता, आलोक जी नहीं बता सकते. That mothers have to find themselves, क्योंकि हर एक सिचुएशन के अंदर कोपिंग स्ट्रेटजीज अलग होंगी, जो हमने पिछली बार बात करी थी. Then advocating for appropriate school intervention. कि वो स्कूल इंटरवेंशन हो या बच्चे की हॉबी का इंटरवेंशन हो, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. उसके लिए हमारे को इनकी वकालत करनी है, एडवोकेसी करनी है, पीछे लगे रहना है, लोगों को कन्विंस करना है ताकि वो इनको कर सके. Then getting to the innumerable opportunities with medical providers, therapists and school persons. कि हमारे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब हम उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ से उनके टीचर्स जो हैं हमारे को इनकी अच्छाइयाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है. तो उनको हमें ध्यान में रख करके उनके ऊपर हमको काम करते रहना चाहिए. So this is all, sir. Thank you. Thank you very much. We have hand raised from Subarna. Subarna, you want to say something? Unmute yourself. हाँ, मैं नीरजा और कविता जी को कांग्रेस भी देना चाहूंगी. मैं नीरजा को बहुत दिन से जानती हूँ, हम लोग आए दिन मिलते भी हैं और मैं बोलती हूँ कि अभिनव बहुत लकी है कि जिसको नीरजा और भैया जैसे मम्मी पापा मिले हैं. और कविता जी को भी बोलती हूँ. मैंने उस दिन हमारा एक सेशन हुआ था अभी, इसमें हमने बोला था ना कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको घर से प्यार मिलता है. तो अभिनव और बेंजी उन्हीं बच्चों में से है जो 10% बच्चे हैं जिनको बहुत प्यार मिला है. तो ये रोल मॉडल्स है हमारे लिए, नीरजा एंड कविता जी, जिन्होंने अपने बच्चों को स्पेशल बच्चे होने के बाद भी एक बोझ नहीं समझा और दुनिया में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उनको बस बधाई देना चाह रही थी. Thank you.
सर मैं थोड़ा सा मैं कुछ Nirja ji, you want to say something? हाँ जी सर, Yeah. थैंक यू सोना। थैंक यू। एक्चुअली सर हाँ, मतलब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी सभी पेरेंट्स के लिए, जैसे अभी सर ने भी बताया कि क्या होता है दिव्यांगता, जो हम सोचते हैं वो हम अपने मन में ज्यादा सोचते हैं, तो हमें सबसे पहले वो निकाल देना चाहिए सभी पेरेंट्स को कि वो तभी कुछ कर पाएंगे। कि लगता है कि नहीं बच्चा ऐसा है और कुछ कर नहीं पाएगा, समाज तो कह ही रहा है, बट हमें अपने वो समाज में वो नहीं देखना है, हमें समाज को दिखाना है कि बाकी चीजें तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हमारे कुछ करने से अच्छा होगा। तो वो है कि वो दुख ना मनाए उसमें और वो दिव्यांगता का सब निकाल दें और बस ये सोचे कि हम इसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हमें करने की जरूरत है और उसके टैलेंट की समझने की जरूरत है। थैंक यू। और अभिनव का एक मैसेज भी है सर, अगर आप हाँ प्लीज बोलो। टैलेंट बचाना, मेहनत करो तो सफलता मिलेगी। फिर से बोलो, जोर से बोलो। टैलेंट बचाना, मेहनत करो तो सफलता मिलेगी। वेरी गुड। मेहनत करो तो सफलता मिलेगी। हाँ सर बोल रहे टैलेंट पहचानो, मेहनत करो सफलता मिलेगी। मैं तो देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अभिनव जो है एक बड़ा काउंसलर बन सकता है। थैंक यू सर। मैं हमेशा मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं पर्सन विद डाउन सिंड्रोम के, जो बहुत काफी हद तक बड़े बड़े प्रोफेशनल कैरियर में वो काम कर रहे हैं। तो अभिनव आपका भी जो प्रोफेशन है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है, बट डेफिनेटली वी विल कम बैक कि हम लोग एक दिन ऐसा देखना चाहते हैं कि अभिनव का हर तरफ नाम है, कि सब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है अभिनव के पास है। तो थैंक यू अभिनव स्पोर्ट्स में भी आएगा। हाँ स्पोर्ट्स में भी आएगा। देखो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अपने अपने तरफ सब अपना अपना सब, इसको जो मैग्नेटिज्म हो रहा है ना, कि देखा कि इसमें स्पार्क है तो सब अपने अपने तरफ खींच रहा है। ये सब बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत लकी है कि आप मैंने कहा काउंसलिंग की तरफ आएगा तो मेरी तरफ आएगा, सवर्णा ने कहा स्पोर्ट्स की तरफ आएगा तो तुम अपने तरफ खींच रहे हो। तो देखो एक बार अगर हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, हम एक बार पहचान बना लेते हैं, एक बार हम प्रूव कर देते हैं अपने आप को, तो हमारे लिए सारी जितनी भी दुनिया के दरवाजे हैं सभी खुल जाते हैं। सो थैंक यू ऑल and thank you for joining us. It is my privilege to extend my heartfelt thanks on this 46.1111 of Mashwara. I on behalf of Mashwara team and Manovikas family and the entire fraternity of institution, first of all I extend my most sincere thanks to Almighty on behalf of my own, and I extend my very heartfelt thanks to first Abhinav and then Benji to joining with us, and second as an expert Nirja ji and Kavita ji for thank you very much for sparing the time, and you have talked very nicely, you have given the very good ideas, so thank you very much for informative address. Then we must have the deepest sense of appreciation for Gupta sir, so thank you very much for giving us for giving us the directions, and big thanks to our volunteer Adya, Namo Narayan, Amjad Hussain, then Shreyans for volunteering towards inviting the experts, sharing our Facebook medias, and also extend my thanks to my staff members and their enormous cooperation in organizing this episode of Mashwara is very good. And thank you Rakhi for sign language interpretation, Kanishka working for the Facebook Live, Indra helping in the Zoom controlling, Nistha, Susil, DJ, Ruby madam, all we are very much fortunate to have you all here, and Manovikas family salutes your motivation and dedication. Finally, the wonderful audience and guests and participants for your active participation with such a great affiliation with Mashwara is incredible. So thank you so much for your active participation. Thanks a lot to one and all directly or indirectly involving this program. So Jai Hind. आप सभी का धन्यवाद। मैं इस मशवरा एपिसोड की मेजबानी करने के लिए आपका धन्यवाद और सम्मान करता हूं। हमारे वक्ता का मैडम कविता कुमार जी का धन्यवाद, नीरजा चौधरी जी का धन्यवाद, और हमारे जो दो स्पेशल आज हमें बोनस में जो मिले हुए एक्सपर्ट्स थे बेंजी और अभिनव, दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में गुप्ता जी ने जो वास्तव में आपके पॉइंट्स बहुत ही वैलिड थे, शंकरन सर आपके भी पॉइंट्स बहुत वैलिड थे, सो थैंक यू वेरी मच। एंड हमारे जितने भी और भी मेंबर्स जुड़े
जुड़े हुए हैं इसमें, आप सभी को धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में सभी मेहमान प्रतिभागी सभी का सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।